So good morning to all of you, and let's just start with the today's lecture. As you know that yesterday we have started the semester 2 and all the basic information related to the semester 2 syllabus I have provided you in the previous lecture. Today we will going to start with this unit 1, and before we are going to start this unit 1, some of the candidates are new in this today's classroom. That's why again we will start with this syllabus of the semester 2 paper. So the BSc semester 2 botany, it consists of the two papers, paper 1 and paper 2. The part of paper 2 is allotted to me, which having the name Morphology of Angiosperms and Floriculture. Angiosperms, these are the flowering plants, and related to these flowering plants, we have to study the different criteria and the different structures related to these angiosperms. This paper 2, semester 2, botany paper 2, it consists of total 4 units. Unit 1, it is a part of vegetative morphology. Unit 2, it is a part of reproductive morphology. Unit 3, it consists of carpel and fruit. And Unit 4, which is the new part of your syllabus, that the skill development. Inside this skill development, we will deal with the floriculture. Unit 1, Vegetative Morphology. Under this heading, we will study the root, stem, and a leaf. Unit 2, Reproductive Morphology. Under this heading, we will study the inflorescence, flower, calyx and corolla, and androecium. Unit 3, under the heading Carpel and Fruit, we will study the gynoecium and the fruit. And last, Unit 4, which is the part of skill development. Under the heading Floriculture, we will discuss the floriculture and the methods of cultivation. Yesterday that we have just left the one point related to the practicals, the list of practicals for the paper 2. You know that the practical it is for 30 marks. प्रैक्टिकल जो होता है आपको 30 मार्क्स के लिए होता है. सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे आप लोगों का थ्योरी पेपर 40 मार्क्स का होता है. 40 मार्क्स के दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2, टोटल 80 मार्क्स हो गए. दोनों पेपर के इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स रहेंगे, 10 मार्क्स फॉर पेपर 1 एंड 10 मार्क्स फॉर पेपर 2, टोटल हो गए 100. देन 30 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स जो रहेंगे आप लोगों के प्रैक्टिकल्स के रहेंगे, राइट. So this is the criteria behind this paper pattern. Now the list of practicals, that is a paper 2. Paper 2 से practical जो रहेंगे, study of different root modifications, study of nature of branching and modification of stem, study of leaf, that is the types of leaf, simple leaf, compound leaf, phyllotaxy, venation and a modification. इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि जस्ट एक बेसिक आइडिया दी थी कल मैंने आप लोगों को. एक एक्सिस रहती है, एक डंडी रहती है, उस पर अगर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स अरेंज किए जाते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे. लेटर ऑन the flowers, the parts, calyx, corolla, androecium, gynoecium, variation in the thalamus. Then the part of fruit, study of different types of fruits which will involve in the practical, identification and the commercial aspects of the cut flowers mentioned in the theory. So this is all about the total syllabus related to the semester 2 botany paper 2. Let's just start with the first unit, that is the root system. ठीक है, फर्स्ट यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी रूट सिस्टम से.
So let's just start with the unit 1 having the topic that is the root system. Root system से हम लोग start करेंगे. The first point related to this root system, that is the characteristics of root. तो हम लोग characteristic देखेंगे सबसे पहले roots के. Root is the descending portion of the axis of the plant and mainly develops from the radical part of the embryo. रूट्स जो होते हैं वो डिसेंडिंग पोर्शन होते हैं. ठीक है, दो पोर्शंस होते हैं, असेंडिंग पोर्शन एंड डिसेंडिंग पोर्शन. असेंडिंग मतलब अपर साइड, ऊपर की तरफ जाएंगे. डिसेंडिंग मतलब लोअर साइड, नीचे नीचे की तरफ जाएंगे, टुवर्ड द सॉइल. तो जैसे कि अगर हम लोग स्टेम के बारे में बात करते हैं, द स्टेम विल बी द असेंडिंग पोर्शन. स्टेम विल बी द असेंडिंग पोर्शन. स्टेम असेंडिंग पोर्शन बन जाएगा. लेकिन अगर हम रूट के बारे में बात करते हैं, then the root it is a descending portion of the axis of the plant and mainly develops from the radical part of the embryo. The important characteristics of the roots are as follows. Roots के important characteristics दिए हैं नीचे, हम लोग one by one पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से. Root is the important organ of the plant body. It is underground descending part of the plant. Root जो होता है ये important organ होता है plant body का. It is underground, under the soil, descending part of the plant. Descending अभी मैंने आपको बताया, descending that is it is towards the lower side, नीचे की तरफ movement होगी इसकी. Second point, roots are developed from the radical part of embryo. ठीक है, embryo means what? That is the part of seed. सीड जो रहता है, सीड में आप लोगों को दो पार्ट्स मिलेंगे. एक मिलेगा रेडिकल और दूसरा मिलेगा प्लूम्यूल. रेडिकल एंड प्लूम्यूल. ठीक है, रेडिकल से रूट सिस्टम बनेंगी और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम मतलब स्टेम बनेगा. ठीक है, सो द रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. Roots are developed from the radical part of embryo. Third point, roots are generally grows towards the gravity and away from the light. ठीक है, रूट जो रहेंगे वो ग्रेविटी की तरफ, जो गुरुत्वाकर्षण होता है सॉइल में, ग्रेविटी जो होती है अर्थ सरफेस में, उस ग्रेविटी की तरफ रूट्स अपनी ग्रोथ शो करेंगे. एंड दे आर अवे फ्रॉम द लाइट. लाइट से दूर भागेंगे. ठीक है, मतलब लाइट जहां पे है उस डायरेक्शन में वो अपनी ग्रोथ शो नहीं करेंगे. So roots are generally grow towards the gravity and away from the light. That is, they are positively geotropic and negatively phototropic. ठीक है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रहेंगे. जियोट्रॉपिक मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जियोट्रॉपिक टुवर्ड्स द ग्रेविटी, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक अवे फ्रॉम द लाइट. ठीक है, अवे फ्रॉम द लाइट, it is a part of the growth of the roots. Next point, root possesses root caps at their tips. रूट जो रहेंगे उनके पास में रूट कैप्स प्रेजेंट रहेंगे उनके टिप्स पे. रूट कैप्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड दैट कैन बी absent in the aquatic plants. So root are generally root possesses the root caps at their tips. root जो रहेंगे वो उनके टिप्स पे root caps शो करेंगे. root caps are protective in nature and that can be absent in the aquatic plants. मतलब पानी में रहने वाले जो प्लांट्स रहेंगे उनके जो रूट्स रहेंगे उनके रूट्स पे आपको रूट कैप्स नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो हम लोग ये कैरेक्टर देख लेते हैं. ये डायग्राम दिए, उस डायग्राम में ये कैरेक्टर दिया हुआ है. यू कैन सी हियर इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. आप लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन सी हियर दिस इज द रूट सिस्टम. रूट सिस्टम दी है
तो आप लोगों को ये ब्रांचेस जो दिखाई दे रही है रूट्स की, इसकी टिप पोर्शन पे अगर आप लोग देखोगे, दिस टिप पोर्शन ऑफ द रूट्स, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ रूट कैप. दिस रूट कैप इट इज absent in case of the aquatic plants. जो aquatic plants होते हैं, कि जो पानी में ग्रो होने वाले plants होते हैं, they does not containing this root cap. ठीक है, उनके पास में root cap present नहीं होते हैं. So root possesses the root caps at their tips. मतलब इसका मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट रहते होंगे, जमीन पे ग्रो होने वाले, ठीक है, सॉइल पे ग्रो होने वाले, उनके पास में रूट टिप्स रहती होंगी. रूट कैप्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, एंड दैट कैन बी एब्सेंट इन केस ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स. Root does not have the nodes and internodes like that of the stem. Roots जो रहेंगे उनके पास में nodes या फिर internodes नहीं रहेंगे, जैसे कि stem होता है. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शुगर केन देखा है. शुगर केन में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं nodes and internodes. ठीक है, we can study easily. So we can study easily the nodes and internodes in case of the sugar cane. तो उसी की तरह मतलब डिविजन्स जो रहेंगे, स्टेम के जैसा डिवीजन होता है, तो वैसा डिवीजन रूट्स के केस में प्रेजेंट नहीं रहेगा. Root does not have the nodes and internodes like that of the stem. A young root shows the presence of unicellular root hairs. जो यंग रूट्स होता है, ठीक है, यंग रूट्स के पास यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं. ठीक है, रूट हेयर्स आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में. यू कैन सी हियर the root hairs, they are present. So in this diagram you can see here the root hairs are there. ठीक है, यहाँ पे root hairs दिखाए हुए हैं. The unicellular root hairs, ये जो धागा दिखाई दे रहा है सिंपल सा छोटा सा आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे धागे हैं लगे हुए. ठीक है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट. टर्शियरी रूट्स पे जो छोटे छोटे धागे निकले हुए हैं, ठीक है, these are called as the root hairs. So the young root shows the presence of unicellular root hairs. These increase the absorptive area. मतलब ये ज्यादा से ज्यादा पानी absorb करने के लिए help करते हैं. Generally roots are non-green. root जो होते हैं non green होते हैं, but if they are exposed to the sunlight they becomes green. Roots जो होते हैं वो जनरली नॉन ग्रीन होते हैं, उनका कलर ग्रीन नहीं होता है. सभी ने देखे हैं रूट्स को. लेकिन अगर रूट्स लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे कुछ रूट्स होते हैं कि जो सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसे रूट्स जो रहेंगे वो रूट्स आप लोगों को थोड़े ग्रीन दिखाई देंगे. नाउ द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट्स का मेन फंक्शन हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि जब भी हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को ये मेन फंक्शन ऑफ रूट वहां पे पूछूंगा. The main function of root is to provide the mechanical support to the plants. So this is the main function of roots. Roots का main function क्या है? To provide the mechanical support to the plants. It is also responsible for the absorption and conduction of water and minerals from the soil. ठीक है? It also responsible, ये जो root का function जो है, it also responsible for the absorption and conduction of water and minerals from the soil. तो सब लोगों को ये वाला function पता होगा कि that root is helpful for the absorption and conduction of water and minerals from the soil. Beside these basic functions, root may also perform some special functions for which they get modified. देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन फंक्शन के अलावा रूट और कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो मेन फंक्शन के अलावा अगर और कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं रूट, सो इट इज अ केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. उसे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहेंगे, कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे उसे. Now before we going to start the modification of root, we just take a look regarding this types of root system. हम लोग types of root system के बारे में पढ़ेंगे. So the types of root system. On the basis of source and development of root, there are two main types of root system. मतलब roots जो है
वो किस चीज से डेवलप हुए हैं, रेडिकल से डेवलप हुए हैं या फिर प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से डेवलप हुए हैं, उसके बेसिस पे। इसलिए उन्होंने बोला है कि दैट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कौन सा सोर्स है और कौन सी प्रोसेस हो रही है वहाँ पे डेवलपमेंट की रूट्स की, उसके बेसिस पे रूट्स के उन लोगों ने दो टाइप्स किए हैं। First type that is taproot system, and second type that is the adventitious root system. So this is the diagrams, the two diagrams which shows you the taproot system and the adventitious root system. This is the normal taproot. ये normal taproot है taproot system। ठीक है, आप लोग यहीं पे डिफरेंस देख सकते हो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बहुत सारे डिफरेंस मिल जाएंगे हमें। ठीक है, यहाँ पे इसका मेन रूट रहता है, यहाँ पे एक मेन रूट रहता है, उसके बाद में उसकी ब्रांचेस निकलती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली फाइबर लाइक और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर। ठीक है, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू हो गए यहाँ पे, ऐसा कोई मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं। ठीक है, so it is a case of taproot and adventitious root. Let's just move towards the and begins with the taproot system। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे taproot system के बारे में। प्राइमरी और taproot system always develop from radical part of the embryo। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि taproot system जो होती है वो रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो से डेवलप होती है। So this taproot system, it is developed from the radical part of the embryo. Secondary lateral roots develop from the primary roots. Tertiary roots develop from the secondary roots and so on। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को सबसे पहले प्राइमरी रूट मिलेगा, मेन रूट जो मिलेगा। ठीक है, दिस इज प्राइमरी रूट। ये जो मेन रूट दिखाई दे रहा है सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से हमें मिलेंगे सेकेंडरी रूट्स। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं उसकी ब्रांचेस। प्राइमरी रूट से मिलेंगे सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी रूट से मिलेंगे यहाँ पे टर्शियरी रूट्स। वी विल गेट द टर्शियरी रूट्स, राइट। सो द प्राइमरी रूट्स, next to the primary roots there is a presence of secondary roots and next to the secondary roots there is a presence of tertiary roots। ठीक है, so the primary roots give rise to the secondary roots and the secondary roots give rise to the tertiary roots। These lateral roots are arranged in a acropetal succession। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स जो रहेंगे वो एक्रोपेटल सक्सेशन मतलब एक स्पेसिफिक वे से, स्पेसिफिक मैकेनिज्म से अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, now what is this acropetal succession? Acropetal succession का मीनिंग क्या होता है? It means that older and larger roots are present towards the base while the younger and smaller roots grow towards the tip। ठीक है, एक्रोपेटल सक्सेशन का मीनिंग होता है कि दैट ओल्डर एंड लार्जर रूट्स। ठीक है, तो ओल्डर और लार्जर रूट्स कौन से रहेंगे यहाँ पे? ओल्डर एंड लार्जर रूट्स, दैट इज द सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स, दीज आर द ओल्डर एंड लार्जर रूट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द बेस। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे कि बेस का पोर्शन नीचे होता है और अपेक्स का पोर्शन ऊपर होता है। तो रूट्स के केस में यहाँ पे ये जो ऊपर पोर्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस ऑफ रूट, ये बेस है रूट का। ठीक है, एंड दिस इज द अपेक्स ऑफ रूट, क्योंकि ये डिसेंडिंग पोर्शन इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में वो ग्रो हो रहा है। सो दिस इज द अपेक्स ऑफ रूट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? In case of taproot system, the roots are arranged in an acropetal succession, means older and larger roots they are present at the base। मतलब इस साइड में रहेंगे older और larger roots, younger and the smaller roots they are developed at the apex। So this is the acropetal succession। इस मैकेनिज्म को एक्रोपेटल सक्सेशन कहा जाता है। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब होता है कि दैट ओल्डर एंड लार्जर रूट्स दे आर प्रेजेंट एट द बेस
and younger and smaller roots that are present toward the tip or the apex. The taproot system is a characteristics of dicot plants. Taproot system जो होता है characteristic feature होता है dicot plants का, ये dicot plants में ही मिलता है. Adventitious root system. In monocots, also the radicals give rise to the primary roots, but this soon stop its growth and replaced by the clusters of thin adventitious roots. एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं तो अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के, ठीक है, अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के किसी दूसरे पार्ट से ग्रो होते हैं, ठीक है, या फिर डेवलप होते हैं. एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के केस में द फाइब्रस और द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, द एडवेंटिशियस रूट्स दे प्रोड्यूस अ क्लस्टर और द ग्रुप ऑफ फाइबर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है. क्लस्टर मींस द ग्रुप ऑफ रूट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ रूट्स, क्लस्टर मींस ग्रुप. यहाँ पे इन्होंने बताया है इन मोनोकॉट्स आल्सो द रेडिकल गिव राइज टू द प्राइमरी रूट सिस्टम, ठीक है. मोनोकॉट्स में रेडिकल जो होते हैं कभी कभी प्राइमरी रूट सिस्टम देते हैं, लेकिन इमीडिएटली वो प्राइमरी रूट सिस्टम रिप्लेस किए जाते हैं, यानी कन्वर्ट हो जाते हैं इन द क्लस्टर ऑफ तीन एडवेंटिशियस रूट्स. क्लस्टर मींस द ग्रुप ऑफ रूट्स, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के केस में. Functional adventitious roots develop from any part of the plant except the radical. देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, that functional adventitious roots develop from any part of the plant. Any part of the plant means it may be developed from the stem, it may be developed from the branches, or it may be developed from the leaf even also, right? ठीक है. So this adventitious root system, it may be developed from any part of the plant except the radical. Radical को छोड़ के किसी भी part से ये root system develop हो सकती है. These roots may develop from the stem, branches or even from the leaves. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रूट जो रहेंगे वो स्टेम से भी डेवलप हो सकते हैं, ब्रांचेस से भी डेवलप हो सकते हैं, या फिर लीव्स से भी डेवलप हो सकते हैं. कौन से रूट्स? एडवेंटिशियस रूट्स. This root system is also called as a fibrous root system as it develops in a cluster. इस रूट सिस्टम को फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो भी क्लस्टर में. क्लस्टर मींस ग्रुप. The bunch of fiber like roots or the bunch of fiber like projections, and this type of root system is called as a fibrous root system. It is a characteristic feature of the monocot plant. जैसे कि हम लोगों ने टैप रूट सिस्टम देखा था, it was a characteristic feature of the dicot plant. उसी तरह adventitious root system, it is a characteristic feature of monocot plant. For example, ज्वार, wheat, etc. These are the monocot plants. Adventitious roots can be artificially developed by grafting or by planting the stem cuttings. For example, rose, nerium, etc. एडवेंटिशियस रूट जो रहेंगे हम लोग आर्टिफिशियली भी डेवलप कर सकते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम है ग्राफ्टिंग, ठीक है. या फिर हम लोग सिंपली अगर हमारे घर में रोज के प्लांट लगाते हैं तो आप लोगों को पता है हम लोग दूसरों के घर से स्टेम कटिंग चुरा के लाते हैं. किसी के घर में अगर आप लोगों को रोज पसंद आ गया तो आप लोग वहां से उसकी स्टेम कटिंग लाते हैं और अपने घर पे लाके लगा देते हैं. तो स्टेम को फिर रूट्स डेवलप होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं वो. फॉर एग्जांपल रोज एंड नेरियम. नेरियम मींस व्हाट? किसी को नेरियम का लोकल नेम पता है क्या? अगर पता होगा तो चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं आप लोग. यू कैन सेंड लोकल नेम ऑफ नेरियम. नेरियम का लोकल नेम. So the rose and nerium, it is an example of the adventitious root system. Main function of the adventitious root is the absorption of water and minerals. ठीक है.
एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का भी मेन फंक्शन वही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बट व्हेनेवर दे गेट मॉडिफाई, अगर वो मॉडिफाई हो जाते हैं, इफ दे गेट मॉडिफाई, but if they modify for the special mechanical function, अगर रूट्स एडवेंटिशियस रूट मेन फंक्शन को छोड़ के अगर किसी दूसरी चीज के लिए मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, मॉडिफाई फॉर द स्पेशल मैकेनिकल फंक्शन, सम ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स आर द प्रॉप रूट्स। चलिए किसने आंसर किया है यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, व्हाट विल बी द आंसर, दैट दिव्या डोईफोडे, दिव्या डोईफोडे ने भेजा है कनेर, कनेर फ्लावर, आई थिंक गूगल पे सर्च करके भेजा है, बहुत टाइम लग गया। एनीवे, so that some adventitious roots are developed, roots that is the prop roots, कुछ एग्जांपल दिए उन लोगों ने adventitious roots के, examples of the adventitious roots, that is the prop roots, banyan tree, stilt roots in case of maize, jowar and rhizopora, leaf roots in case of bryophyllum, climbing roots in case of beetle leaf, pothos, etc. Parasitic roots, that is the cuscuta, aerial roots example is vanda। तो ये जो इन लोगों ने यहाँ पे टाइप्स दिए, these are the different types of adventitious roots, ये adventitious roots की टाइप्स है। adventitious roots, some adventitious roots are, adventitious roots के टाइप्स दिए उन लोगों ने। सबसे पहला टाइप दिया क्रॉप रूट्स, क्रॉप रूट्स होते हैं बनियान ट्री के केस में। स्टिल्ट रूट्स ये होते हैं मेज, ज्वार और राइजोफोरा के केस में। लीफ रूट्स जो होते हैं वो ब्रायोफाइलम के केस में होते हैं। क्लाइंबिंग रूट्स जो होते हैं बीटल लीफ या फिर पोथॉस के केस में होते हैं। पैरासिटिक रूट्स होते हैं कस्क्यूटा के केस में, और एरियल रूट जो होते हैं वो वैंडा प्लांट के केस में होते हैं। सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉप रूट्स, हम लोग क्रॉप रूट्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, and we will discuss the condition of crop roots, examples of crop roots and the mechanism of crop roots। Now you have to go in your chat box, जब तक मैं नहीं कहता तब तक नहीं जाना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। You have to go in your chat box and write down your name as well as one word, that is present sir करके। You have to go in your chat box and write down there your name as well as one word present sir